Hello everyone. So today I am going to take up the last topic of my ICSE syllabus, ICSE class 10 syllabus, and the topic is the last lesson. So yes, this is the last video as in like I've completed the entire syllabus of ICSE 10th. I have completed all the acts and scenes of Julius Caesar, all the poems, and this is the final last chapter of your syllabus. So, I hope this video will be really helpful for you people, and do not forget to like, share, and subscribe to this channel. One thing more I would like to tell you all that I have made a book of transformation of sentences. This book is really helpful for you people. Why? Because all the rules, all the transformations, around 500 solved examples, along with the questions of last year exams, everything has been solved and given to you in the PDF form. So if you want that book, you can simply click on the link given below. It will connect you to my WhatsApp. On that WhatsApp, I'll give you all the instructions and share the PDF to you. The cost of the book is rupees 99. So if you want that book, you can definitely WhatsApp me on the link given below. So now talking about the last lesson. So the last lesson by Alfonso Duet. This story is set during Franco-Prussian War, that is somewhere around 1870 to 1871, when France was defeated by Prussia. Modern day we call Germany. So the story is narrated by Franz, a young boy living in the French region of Alsace-Lorraine, which was annexed by the Prussian forces. The focus of the story is on the importance of one's language. सबसे main point इसमें one's language का है and national identity है. This is the main focus of the story. So, the story is set during a time of great political turmoil in France. In 1871, after the defeat of France in the Franco-Prussian War, the regions of Alsace and Lorraine, they were taken by the Prussians, that is the German Empire. And as a part of their efforts to enforce German rule over these regions, the new rules imposed their language and banned the teaching of French in the schools of Alsace and Lorraine. This led to a sense of loss and cultural erasure of people of Alsace and Lorraine who identified with the French language and culture. एकदम से कोई आए और हम लोग से बोले हिंदी बोलना बंद कर दो, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लैंग्वेज बोली जाएगी, तो कितना धक्का लगेगा ना. वहाँ पे भी यही था. लोग अपनी लैंग्वेज से कनेक्ट करते हैं. पैट्रियोटिज्म एंड नेशनल आइडेंटिटी. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं द स्टोरी एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ one's national language as a symbol of identity. The imposition of German reflects the loss of French national pride, making the story a powerful expression of patriotism. We'll see that there are two main characters in the story. One is Franz and his teacher, Mr. Hamel. They both express regret. Why? Because Franz feels guilty for not paying attention to his lessons, whereas Mr. Hamel, who is his teacher, regrets that he did not punish students hard enough to learn. So, this regret actually symbolizes the collective feeling of the people of Alsace for not fighting harder to preserve their language and culture. They are feeling very sad and guilty because अब वो अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे. वहाँ पे बैन हो गई थी, फ्रेंच लैंग्वेज को बैन करके जर्मन लैंग्वेज इम्पोज कर दी गई थी. सो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज को भी हम बता सकते हैं. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट हाउ लैंग्वेज इज मोर देन जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. It is tied to culture, to history and identity. Losing one's language can feel like losing a part of oneself. हमसे हमारी लैंग्वेज छीन ली जाए, ऐसा लगेगा हमसे क्या छीन लिया गया है, राइट. आपको आपकी बेसिक लैंग्वेज बोलने का हक नहीं है. सो कल्चरल सप्रेशन इस स्टोरी में रिफ्लेक्ट होता है. सो द बॉर्डर थीम ऑफ हाउ कॉलोनाइजर्स इम्पोज देयर लैंग्वेज एंड कल्चर ऑन द कॉलोनाइज्ड, जस्ट एमिंग टू रिड्यूस देयर आइडेंटिटी. क्यों जर्मन वहाँ पे इम्पोज की गई? ताकि फ्रेंच ख़त्म हो जाए, फ्रेंच
कि आइडेंटिटी ख़त्म हो जाए. सो द लास्ट लेसन ब्यूटिफुली conveys a sense of loss, love for one's country, and the bitter consequences of not valuing one's cultural heritage until it is too late. So let's get started with the line by line summary of the chapter. The last lesson. I started for school very late that morning and was in a great dread matlab fear, of a scolding, especially because Mr. Hamill had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. So, फ्रांस नाम का बच्चा है जो आई आई बोल रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन फ्रांस है. फ्रांस उस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट निकलता है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसको पूरी उम्मीद थी दैट ही वुड गेट अ गुड स्कोल्डिंग. वाई? बिकॉज उसके जो टीचर थे मिस्टर हैम्यूल, उन्होंने बोला था कि वो बच्चों को पार्टिसिपल्स पे टेस्ट करेंगे. एंड द बेसिक प्रॉब्लम वॉज उसको तो पार्टिसिपल का कुछ भी नहीं आता था, नॉट इवन द फर्स्ट वर्ड ऑफ पार्टिसिपल. And I did not know the first word about them. He did not had a clue about participles. कुछ भी नहीं पता था participle के बारे में. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. He thought of bunking the class. सोचा अरे छोड़ो यार, स्कूल छोड़ता हूँ, भाग जाता हूँ, डे बहुत अच्छा है, बाहर ही निकल लेता हूँ. It was so warm, so bright. See, India is a very warm country, so we do not enjoy sun. लेकिन अब्रॉड में जहाँ पे हर समय ठंडक रहती है, वहाँ पे हल्की सी भी लाइट आती है, सनशाइन आती है, तो वो दिन बहुत अच्छा होता है. सो उस दिन भी बहुत ही अच्छा था, ब्राइट डे था, सनशाइन हो रही थी. तो ही वॉज प्लानिंग कि काम करता हूँ, मैं बंक कर लेता हूँ. सो ब्राइट डे है, बाहर चला जाता हूँ. The birds were chirping at the edge of the woods. Woods means forest. So birds were also chirping. सब शांति से चप 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 आवाज आ रही थी, कितना अच्छा लग रहा था. And in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. So Persian soldiers means the German soldiers. पीछे German soldiers drill कर रहे थे, अपना march and all कर रहे थे backfield में. It was all much more tempting than the rule of participles. हे भगवान, ये सब गंदा गंदा पढ़ने से तो अच्छा है मैं bunk कर लेता हूँ, German soldiers को देखूंगा, birds को देखूंगा. I'll enjoy everything rather than going to school and learning those dirty participles. छी. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो करेज था कि मैं ये सारी अल्योरिंग चीज़ों को, इतना ल्योर मुझे कर रहे थे, इन सबको रेजिस्ट करके मैं स्कूल चला ही गया. मैंने कहा चलो स्कूल चलते हैं. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. So बुलेटिन बोर्ड एक नोटिस बोर्ड टाइप था. पहले ज़माने में व्हाट्सएप, टीवी ये सब तो होता नहीं था. तो यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड्स था, नोटिस बोर्ड था. सो वहाँ पे जब ये जाता है रास्ते में, तो वो बुलेटिन बोर्ड के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 साल से हमारे सारे बुरी न्यूज़ हमें वहीं से मिल रही थी. जितनी हमारी बुरी वॉर के हारने की, कोई भी डिफीट की, कुछ भी न्यूज़ थी, हमें वहीं से मिल रही थी, उसी बुलेटिन बोर्ड से. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? भाई जो treaties हैं, जो wars के lost wars हैं, जो commanding officers ने नए नए rules जो लगाते थे, वो सब कुछ उनको उस bulletin board से पता चलता था. अब ये दौड़ रहा है, स्कूल जा रहा है, लेट हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन ये सोचते सोचते जा रहे हैं, भगवान अब कौन सा इसमें बैड न्यूज़ आएगा. गुड न्यूज़ का तो कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वहाँ के लोग तो वॉर हार चुके हैं, तो कुछ बैड ही न्यूज़ होगा. Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith, Watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me. So, blacksmith एक था, blacksmith लोहार को बोलते हैं जो लोहे से काम करते हैं. So, वॉचर जो था, दिस इज़ द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ, वो अपने हेल्पर, अप्रेंटिस इज़ अ पर्सन जो उसकी हेल्प करता है. जो आपने देखा होगा लोहार एंड ऑल होते हैं, एक मेन हेड होता है, उनके साथ जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं. सो देयर वाज अ हेल्पर. ये जब जा रहा था तो ब्लैक स्मिथ इसको पीछे से बुला के कहता है, डोंट गो सो फास्ट. बाप बाप मतलब बॉय, इट्स अ वे, कैजुअल वे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम. वो मॉक कर रहा था, वो मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे क्या है भाई, तुम इतना क्यों तेजी में भाग रहे हो, पहुंच जाओगे, भागो नहीं इतनी जल्दी में. I thought he was making fun of me and reached Mr. Hamill's little garden out of breath. हाँ जल्दी जल्दी भाग भाग के जाता है, so he was out of breath. और वो finally Mr. Hamill के garden में पहुंच जाता है. Usually when the school began there was a great bustle. Bustle means noise, which could be heard out in the street. Generally जब school begin होता था तो
अंदर क्लास में बहुत ज़्यादा, आप लोग के भी स्कूल में अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत नॉइज़ होती है, बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ रहती है। छुट्टी के समय भी ऐसी नॉइज़ होती है, जाते समय भी होती है, तो ये भी वही बता रहा है कि अर्ली इन द मॉर्निंग यूजुअली बहुत नॉइज़ होती थी, जो कि स्ट्रीट्स में सुनाई देती थी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के ओपन क्लोज करने की। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मीन्स टुगेदर। लेसन्स, छोटा आ, छोटे आ की मात्रा, बड़ा आ, बड़े आ के, तो इस तरह से जो साथ में सब बोलते थे यूनिसन में, वो आवाज़ें आती थी। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, तो हम लोग जनरली जब पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं करते हैं छोटा आ की मात्रा, ताकि याद हो जाए, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। तो एवरी वन वॉज डूइंग द सेम। Very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rappling on the table, and teacher की जो great ruler है वो ऐसे ऐसे rap कर रहा है, बार बार beat कर रहा है, table को कर रहा है। But now it was also still, but आज सब बहुत still था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. Counted मतलब dependent. Generally I used to depend on the noise. Generally अक्सर ये लेट हो जाता था, इसका मतलब है। तो ये क्या करता था, ये जो नॉइस थी, ये उसका एडवांटेज लेके चुपचाप धीरे से अपनी सीट पे चला जाता था। लोग ध्यान नहीं देते थे क्योंकि इतनी नॉइज होती थी, पता ही नहीं चलता था कि कोई एक बच्चा आके बैठ। ओके, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. but उस दिन स्पेशली सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, कोई स्कूल में कोई बच्चा ही ना हो, इतना ज़्यादा शांत था, सब इतना शांति से वहाँ पे बैठे हुए थे। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन द प्लेसेस, विंडो से मैं ऑलरेडी देख चुका था सारे बच्चे, ऐसा भी नहीं है छुट्टी है, बच्चे तो ऑलरेडी क्लासमेट्स मेरे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। and Mr. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और मिस्टर हैमिल जो थे वो अपनी एक भयानक सी रूलर रख के वो ऐसे ऐसे वॉक कर रहे थे अंडर हिज आर्म। ओ माय गॉड, I had to open the door and go in before everybody. This was so shameful for me. अब सबके सामने आया, दरवाज़ा खोला, मुझे अंदर जाना था। रोज़ ऐसा नहीं होता था, रोज़ तो मैं बहाने से आवाज़ का डिपेंड होके उसके चोरी से मैं जाके बैठ जाता था। अब आज तो सब अपनी अपनी जगह पे ऑलरेडी बैठे हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, मुझे उठ के जाना पड़ रहा है। यू कैन इमेजिन how I blushed and how frightened I was. हे भगवान, how blushed means how embarrassed, how shy. मुझे इतनी गिल्ट, इतना शर्म आ रही थी, हे भगवान मैं लेट हो गई हूँ, सब ऑलरेडी बैठे हुए हैं। एंड आई वॉज फीलिंग फ्राइटेंड ऑल्सो। वाई? बिकॉज मिस्टर हैमिल बहुत मारते थे, वो बहुत केन करते थे, और एज अ रिजल्ट मुझे डर भी लग रहा था, हे भगवान मैं लेट हो गई हूँ, अब तो पिटाई पक गई है। बट नथिंग हैपन, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मिस्टर हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस, go to your place quickly little Franz, we were beginning without you। तो मिस्टर हैमिल मुझ पे गुस्सा होते ही नहीं है, केन इन करते ही नहीं है, वो तो सिंपली कहते हैं अरे तुम तो देर हो गई, चलो जाओ अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही बिगिन करने वाले थे। तो एक तरह से छोटा सा रिब्यूक कर रहे हैं, हल्का सा डांट रहे हैं, देर हो गई है, तुम्हारे बिना बिगिन करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं जल्दी से कूद के अपने डेस्क पे चला गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize day. So generally सब लोग के पास ऐसा ही कपड़े होते हैं ना, जो हम लोग अपने ऑफिस के लिए अलग रखते हैं, पार्टी के लिए अलग रखते हैं, स्पेशल डेज के लिए अलग रखते हैं। तो इनके जो टीचर थे वो आज एक स्पेशल कपड़ा पहने थे, तो जब ये अपनी सीट पे चला जाता है, थोड़ा सा इसका जो डर है, वो नर्वसनेस कम हो जाती है। देन ही एक्चुअली नोटिसेस, अरे आज कुछ स्पेशल है क्या, सर तो आज बड़े सज धज के आए हैं। जनरली बच्चे, अगर आप कभी अच्छे से ड्रेसअप होके स्कूल चले जाओ या कोचिंग चले जाओ, तो बच्चे आप टीचर से जनरली ये बोलते हैं ना, अरे मैम आज आपका बर्थडे है क्या, मैम आज कुछ है क्या। तो ये भी बहुत कन्फ्यूज्ड है, क्या बात है भाई, क्यों, क्या है ऐसा जो ये इतना अपनी शर्ट पहने हुए हैं, ये ग्रीन कोट पहने हैं, फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए हैं, लिटिल ब्लैक सिल्क की कैप लगाए हुए हैं जो कि एम्ब्रॉयडर्ड है, और वो ये सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते थे या प्राइस डे वाले दिन पहनते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. In fact, the entire school बहुत ही ज़्यादा strange और बहुत ही solemn, solemn मतलब serious लग रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back bench that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. सबसे strange चीज़ मुझे क्या लगी, चलो ये सब तो strange था, चलो कोई बात नहीं। आज क्लास में जो पीछे वाली सीट्स हैं जो कि जनरली खाली रहती हैं,
आज वहाँ पे भी विलेज के कुछ लोग आके बैठे हुए थे। ये क्यों था? ऐसा कैसे था? इसको समझ में नहीं आता है। The village people were sitting quietly like ourselves. कौन-कौन था? Old Hosser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. So, elderly people of the village, पुराने जो ओल्ड मेयर थे वो, साथ ही साथ पोस्टमास्टर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, सब आके वहाँ पे बैठे थे। कई इंपॉर्टेंट लोग आके बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक सैड, और सबकी सबसे स्ट्रेंज बात क्या थी, बड़े दुखी लग रहे थे। हैप्पीनेस वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, सब बड़े दुखी दुखी थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस, और हॉसर जो थे, जो एल्डरली पर्सन थे, वो अपने साथ एक प्राइमर प्राइमर वो जो ABCD या जो इनिशियल लेवल ऑफ रीडिंग वाली बुक होती है उसके लिए होता है, तो वो लेके आए थे। ऊपर से वो काफ़ी रफ थी, काफ़ी यूज्ड वाली, जैसे नहीं होती है रखे रखे फट जाते हैं कॉर्नर्स, वो वाली हो रखी थी। और वो क्या किया हुआ था? ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद द ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। वो अपनी बुक ओपन करके रखा था, उसके बीच में अपना चश्मा रख के पैरों पे रखा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, ये सब है क्या? क्यों ये लोग आए हुए हैं? ये क्या चाह रही हैं? मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर। मिस्टर हैमल जो इनके टीचर थे वो अपनी चेयर पे जाते हैं, एंड इन द सेम ग्रेव ग्रेव मतलब सीरियस एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी said, my children, this is the last lesson I shall give you. The orders have come from Berlin to teach only Germans in the school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. So this was the reason for everyone's sadness. क्या कि इनके मास्टर जब ऊपर चढ़ते हैं तो वो बताते हैं कि एल्साचे और लॉरेन में ऑर्डर्स आए हैं कि अब वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, इंस्टेड नाउ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। सो वो बता रहे हैं कि आज हम आपका लास्ट फ्रेंच लेसन पढ़ाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन एंड आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। देखो भैया, ये लास्ट फ्रेंच लेसन है, मैं चाहता हूँ कि बहुत ध्यान से प्लीज़ इसको सुनना, बिकॉज फ्रेंच इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज़ द रीज़न वाई द टीचर बोल रहा है, बार बार बोल रहा है कि भैया देखो आज लास्ट लेसन है तुम लोग का फ्रेंच लैंग्वेज में। फ्रेंच लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। और जाहिर सी बात है यार, अगर आपको अपनी लैंग्वेज नहीं आती, आप अपनी कंट्री में, इमेजिन यू आर लिविंग इन इंडिया एंड यू डू नॉट नो द बेसिक लाइक वट एवर लैंग्वेज। इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, मान लो हम यूपी में रहते हैं, आई लिव इन लखनऊ एंड आई डोंट नो हिंदी, सो दिस इज़ एक्चुअली एन इंसल्ट फॉर मी कि है इतनी बड़ी अंग्रेज़ बनी है तो अपनी ही लैंग्वेज नहीं आती है, ये शर्म की बात है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को वो बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट दैट यू पीपल शुड बी वेरी अटेंटिव टुडे। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये एक शौक था, ये तो एक झटका मुझे मिल गया था। हे भगवान, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? अरे हमारी लैंग्वेज हमसे कैसे छीनी जा सकती है? Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. Now he realizes. अब उसको ये realize होता, ओ उन नलायकों ने ये मैसेज लिखा था, शिट, ये टाउन हॉल पे बुरी न्यूज़ आनी थी, ये बुरी न्यूज़ आनी थी। ओ my last French lesson? Why? I hardly know how to write. I should never learn anymore. So now he is feeling guilty, he is feeling regretful. हे भगवान, अभी तो मुझे कुछ लिखना ही नहीं आता है। देखो, आप लोग के साथ भी ये प्रॉब्लम है, हिंदी में लिखना सबको बड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है। हिंदी सबके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है। व्हाई? बिकॉज़ आप लोग जनरली सारे लैंग्वेज जो है वो, सारा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में करते हो। अब आपको हिंदी एक टिपिकल लगता है, तो यहाँ पे वही वैसे ही उसको भी फ्रेंच। ओह शिट! मुझे तो अभी लिखना भी नहीं आता, मुझे तो अभी पढ़ना भी नहीं आता, और अब मैं कभी सीख भी नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मुझे यहीं पे रुक जाना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। नाउ ही फील्स रिग्रेटफुल। उसको लगता है यार मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि मैं बर्ड्स एग के लिए या सार सार रिवर है उस पर स्केटिंग करने के लिए चला जाता था और अपने इतने इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस कर देता था। तो इसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील। सो फ्रांस फील्स वेरी रिग्रेटफुल for wasting his time and going out to hunt the egg of the bird. What he used to do, he used to go and slide on the Saar. Saar पे जाके skates करता था। Saar जो river है which passes through France, उसको बोला गया है। That had seemed such a nuisance a while ago.
so heavy to carry. My grammar and my history on the saints were old friends now that I couldn't give up. Oh my god, अभी थोड़े टाइम तक ये बुक्स मुझे कितनी हेवी लग रही थी, ऐसा लग रहा था ये भगवान ये चली क्यों ना जाए, ये हट जाए, और आज मुझे ये ओल्ड फ्रेंड्स जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये मुझसे बिछड़ रही है, मैं इनसे छूट जाऊंगा, अब मैं इनसे कभी मिल नहीं पाऊंगा. सो आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, आई वॉज फीलिंग अनॉयड कि हे भगवान अब क्या होगा. सो फ्रांस एक्चुअली स्टार्ट्स फीलिंग एज इफ वो बुक्स उसकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड ही डज नॉट वांट टू लीव देम, वो छोड़ना नहीं चाहता है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट द राइटर इज एक्चुअली ट्राइंग टू शो दिस सडन चेंज ऑफ एटीट्यूड. यहाँ पे कितनी जल्दी उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है टुवर्ड्स हिज स्टडीज. एंड देखो ये हम लोग की हैबिट होती है कि जब चीज़ हमारे पास होती है हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है, जैसे ही वो चीज़ हमें ऐसा लगता है हमसे दूर जा रही है, हम सडनली उसको इम्पोर्टेंस देने लगते हैं. एंड Mr. Hamill too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और सबसे बड़ी बात क्या थी, मिस्टर हैमिल इतने साल से वो इसको पढ़ा रहे थे, क्रैंकी मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड. अब वो सोच रहा है कि हे भगवान अब ये भी चले जाएंगे. जैसे ही उसको जाने का ख्याल आता है वो सब भूल जाता है कि वो कितने शॉर्ट टेम्पर्ड है, उनके अंदर कमियां क्या हैं, उसको सिर्फ उनकी अच्छाई याद आने लगती है. ही नेवर वांटेड हिम टू गो अवे, वो नहीं चाहता था कि ये जाएं. वो सिमिलर जैसे उसको लैंग्वेज का इम्पैक्ट फील होता है वैसे ही अपने टीचर का भी इम्पैक्ट फील होता है. वो कितने स्ट्रिक्ट हैं, कितने शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, उससे अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. अब ये मेक आउट कर पाता है, अच्छा इस वजह से मिस्टर हैमिल अपने बेस्ट क्लोथ्स पहने हुए हैं बेचारे. सो नाउ फ्रांस न्यू कि वो ऑनर में पहन के आए हैं, ऑनर अपने इस लास्ट लेसन के ऑनर में वो पहन के आए हैं. एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. अब इसको ये बात समझ में आती है, अच्छा इसी वजह से ये जो ओल्ड मैन है, ये जो विलेज के लोग हैं यहाँ पे आए हैं. अच्छा दे वॉन्टेड टू पे रिस्पेक्ट टू मिस्टर हैमिल कि इतने साल से उन्होंने हम लोग को हमारी लैंग्वेज सिखाई. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. Now they regret कि उनको भी स्कूल ज़्यादा जाना चाहिए था. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. So ये उनका तरीका था, ये विलेज लोगों का तरीका था. विलेज वालों का क्या तरीका था कि वो स्कूल में आए अपना बैठे एंड दे फील रिग्रेटफुल ऑल्सो कि काश हमने भी ज़्यादा स्कूल गए होते. देखो विलेज में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, उनको क्या है चले जाएं थोड़ा पैसा कमाएं, क्या फ़ायदा स्कूल जाके. तो नाउ दे आर फीलिंग रिग्रेटफुल कि यार काश हम चले गए होते और हम अपनी लैंग्वेज पे कमांड तो पा सकते. तो ये उनका तरीका था मिस्टर हैमिल को थैंक्स बोलने का और यहाँ पे आके अपनी रिस्पेक्ट शो करने का. While I was thinking of all this, I heard my name called. मैं ये सब सोच ही रहा था तभी मेरा नाम सुनाई देता है, मुझे कोई बुला रहा है. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule of participle all through? Very loud and clear and without one mistake. काश ऐसा होता कि मैं एक बार में सारे रूल्स बता पाता. काश ऐसा होता कि मैं सब कुछ बिना किसी गलती करे बता लिया होता. देखो फ्रांस जो है वो अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन ये जो सडन शॉकिंग न्यूज़ उसको मिली है वो इतना ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड है कि काश ऐसा होता कि मैं किसी भी हाल में बिना मिस्टेक करे, एक भी मिस्टेक किए बिना अपनी टीचर को काश मैं ये रूल बता पाता. लेकिन आज तक तो उसने पढ़ाई की ही नहीं है तो वो रूल बताना तो पॉसिबल ही नहीं था. तो ये बता तो नहीं पाता है बट ये विश करता है कि काश यार ऐसा हो जाए कि मैं कोई गलती ना करूं और बहुत ही ईजिली मैं सारा रूल्स बहुत ही अच्छे से बता सकूं. सो इसकी डेस्परेशन, उसकी विलिंगनेस रिफ्लेक्ट हो रही है कि काश वो एक ही बार में पूरा सब कुछ बहुत अच्छे से रिसाइट कर दे. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. लेकिन क्या होता है, फ्रांस को लेसन तो आता नहीं था. ही डिड नॉट नो इवन दी फर्स्ट वर्ड ऑफ पार्टिसिपल. सो ही गॉट कन्फ्यूज्ड और वो बहुत अशेम्ड फील करता है और वो चुपचाप सर नीचे करके खड़ा हो जाता है. हिज हार्ट वॉज बीटिंग फास्ट. वाई? बिकॉज ही वॉज अशेम्ड ऑफ not able to know
और लर्न हिज ओन मदर लैंग्वेज। अब उसको बहुत अशेम्ड फील होता है कि काश मेरे को आता होता, मैं एक बार में बता देता। एंड ही वॉज फीलिंग वेरी अशेम्ड एंड ही वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट हिज फेस अप सो एज टू फेस हिज टीचर। किस मुंह से अपना शक्ल दिखाऊं मैं सर को। आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा फ्रांस, तुम्हें खुद ही बुरा लग रहा होगा, मैं तुम्हें क्या डांटूं। क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो ये चीज़ रियलाइज़ कर चुके हैं कि फ्रांस को अपनी गलती समझ में आ रही है, उसको गिल्ट फील हो रहा है कि काश मैंने पढ़ाई की होती। सी हाउ इट इज। अब देखो क्या है, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो। हम लोग भी यही करते हैं ना, अरे अभी तो बहुत समय है, अरे कल कर लेंगे। तो ये हम लोग की हैबिट है, हम लोग कभी भी कोई भी चीज़ सीरियसली लेते नहीं, हमेशा कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, अरे अभी तो बहुत समय है। एंड नाउ यू सी वे वी हैव कम आउट। और अब देखो क्या हो गया, व्हाट इज द आउटकम। अब रिजल्ट देखो क्या है। दैट्स ग्रेट ट्रबल विद इल्साचे। यही मेन प्रॉब्लम है इल्साचे की पब्लिक के साथ, यही मेन प्रॉब्लम है। क्या? शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। हम लोग हमेशा अपनी लर्निंग आगे के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। अच्छा अब बताओ, जो लोग आएंगे तुम्हें रूल करने के लिए, वो क्या तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे? अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, वाह कैसे फ्रेंचमैन हो, अपनी ही लैंग्वेज नहीं आती है तुमको। But you are not the worst, poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves. लेकिन सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, हम सब उस गलती के हिस्सेदार हैं। हम सबको रिप्रोच मीन टू क्रिटिसाइज आवर सेल्व्स। हमारे पास वैलिड रीजंस हैं कि हम खुद को क्रिटिसाइज करें। हम लोग ने उतनी ही गलती की है जितनी तुम्हारी गलती है फ्रांस। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न। देखो तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे मतलब यहाँ पे सिर्फ फ्रांस की बात नहीं हो रही है, जनरल पब्लिक ऑफ इल्साचे की बात हो रही है। योर पेरेंट्स वर नेवर इंटरेस्टेड इन सेंडिंग यू टू स्कूल। वो कभी बहुत ज़्यादा एंक्शियस थे ही नहीं, कभी ट्रबल्स ली नहीं उन्होंने कि नहीं नहीं स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है। They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. इससे अच्छा वो सोचते थे थोड़ा फार्म चले जाओ, कहीं मिल में काम कर लो, कुछ पैसे कमाओगे। And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? और सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी भी उतनी ही गलती है। अक्सर ऐसा होता था, मैं तुमसे कहता था चले जाओ भैया मेरे पानी डाल दो पेड़ों में। जब मेरा पढ़ाने का मन नहीं होता था, कुछ ना कुछ मैं तुम लोग से फर्जी काम करवा लेता था। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब जब मेरा फिशिंग का मन होता था, मैं ऐसे ही तुम लोग को कैजुअल वे में हॉलीडे दे देता था, जाओ जाओ आज छुट्टी है। तो इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी भी उतनी गलती है। Then, from one thing to another, Mr. Hamill went on to talk of the French language. This was the most difficult thing for a teacher. This is actually why, because जो चीज़ वो इतने साल से पढ़ा रहे, suddenly एकदम से नहीं, कल से नहीं करना है। तो ये बहुत शॉकिंग था। तो वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं, जो जो उनको पता था, एक चीज़ से दूसरी चीज़ जाते हैं। Saying that it is the most beautiful language in the world. Indeed it is. तो वो बताते हैं कि वो सबसे beautiful language है वर्ल्ड की। The clearest, most logical, that we must guard it among us and never forget it. तो हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, हमें भूलनी नहीं चाहिए। पता चला देखो जितने भी इन्वेडर्स आते हैं ना, मतलब कोई कंट्री दूसरी कंट्री को जब कैप्चर करता है तो वो क्या सोचती है, हमारा पार्ट ये बन जाए, तो अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दें, हमारे पार्ट में इन्वॉल्व हो जाए। तो भाई जर्मन्स जब रूल कर रहे थे तो सोच रहे थे यहाँ पे सिर्फ जर्मन्स पढ़ाई जाए। तो भाई वो बोल रहे हैं कि अपनी आइडेंटिटी हटाना सही नहीं है, हमें अपनी आइडेंटिटी कभी भी दूसरों के हाथ में सौंपनी नहीं चाहिए। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Very important. क्या बोल रहे हैं कि देखो अगर हम किसी के, देखो भाई इंडिया की बात अगर करें तो गांधी जी ने ही एक तरह से हम लोग को आज़ादी दिलाई। हिंदी में लेटर्स लिख लिख के, स्पीचेस लिख लिख के, अपनी लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी के अंडर में हो और आपको अपनी लैंग्वेज पे कमांड है, तो एज़ इफ़ यू हैव द की टू योर प्रिजन, आपके पास चाबी है अपनी जेल की। लेकिन अगर आपको अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती है तो कुछ नहीं है, आप उनके गुलाम हो। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन। फिर वो ग्रामर बुक ओपन करते हैं और वो रीड करते हैं लेसन। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट एंड ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। देखो होता क्या है,
समझ में सारे बच्चों को सब कुछ आता है। देखो तुम्हें जब क्लास में मैम पढ़ाती हैं तो नहीं समझ में आता है, लेकिन एग्ज़ाम के 1 दिन पहले जब पता है कि अगर नहीं करूँगा तो फेल हो जाऊँगा, पापा मारेंगे, तो सब कुछ समझ में आने लगता है, राइट? तो ये हम अपनी थिंकिंग या कंसंट्रेशन पावर के हिसाब से कह सकते हैं। तो यहाँ पे वही वो बोल रहे हैं कि पता नहीं कैसे आज मुझे सब कुछ इतने अच्छे से समझ में आ रहा था। दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, शायद मैंने इससे पहले इतने ध्यान से कभी सुना ही नहीं था। इस वजह से मुझे सब कुछ आज ऐसा लग ही नहीं रहा था, अरे! ये तो इतना डिफ़िकल्ट है, अरे! ये तो इतना डिफ़िकल्ट कुछ नहीं लग रहा था, आज तो सब कुछ इतना सिंपल है, अरे! ये तो बड़ा सिंपल है, अरे! ये तो मुझे आता है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और शायद मिस्टर हैमिल ने पहले कभी इतने पेशेंटली पढ़ाया भी नहीं था। आज वो उनको उनके मन में ये था कि मुझे जितना आता है मैं सब कुछ बता के चला जाऊँ, ताकि इन लोगों को कुछ तो आए अपनी लैंग्वेज के बारे में। तो वो इतने पेशेंटली उन्होंने पहले शायद कभी पढ़ाया भी नहीं था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. वो चाहते थे कि जितना मुझे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में आता है, काश मैं सब कुछ इन लोग को बता के यहाँ से जाऊँ। एंड टू पुट इट इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक झटके में जितनी उनकी नॉलेज है अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज वो सब कुछ हमारे दिमाग में डाल दें। आज वो ऐसा बिहेव कर रहे थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हम लोग ने एक राइटिंग का लेसन किया। दैट डे मिस्टर हैमर हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन सब कुछ न्यू प्रिपरेशन, एक अलग सा क्रिएटिव वे में वो कर रहे थे जो वो पहले कभी भी नहीं करते थे। उस दिन उनके लिए न्यू कॉपीज थी, रिटन इन ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्साचे फ्रांस। सो ब्यूटिफुल राइटिंग पे उस पर फ्रांस एल्साचे फ्रांस लिखा था। They looked like flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. So यहाँ पे कह सकते हैं that France felt that here the air of patriotism was in the air. पूरे क्लासरूम में patriotism वाली फीलिंग आ रही थी। नोटबुक्स जो हैं वो फ्लैग्स ऑफ फ्रांस की तरह थे that were floating all around। एक अलग सी फीलिंग उस दिन आ रही थी, right? And you ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of pen over paper. Entire class was busy in writing. कोई कुछ आवाज कर ही नहीं रहा था। एक इकलौती आवाज आ रही थी, पेन, जब हम लोग पेन से पेपर पे लिखते हैं तो सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी, बाकी कोई आवाज वहां पे आ ही नहीं रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. एक बार तो अंदर कुछ beetles चली आती हैं, लेकिन जनरली छोटे बच्चे उससे इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं, हटो हटो बीटल, ये सब करने लगते हैं। कोई ने किसी ने अटेंशन ही नहीं पे किया। Not even the little ones who worked right on tracing their fish hooks as if it was French too. जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि कलरिंग एंड ऑल कर रहे हैं, वो लोगों ने भी उस पर अटेंशन नहीं पे किया। वो लोग को भी समझ में आ रहा था कि कितना सीरियस इन्वायरमेंट है, कितना डिफिकल्ट सिचुएशन है। वो जो फिश नेट्स बना रहे हैं एज इफ दे आर राइटिंग फ्रेंच टू, इतना सीरियसली वो लोग काम कर रहे थे। On the roof the pigeon cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? कितनी बड़ी बात बोली है। ऊपर जो हैं वो पिजन्स जो हैं वो कू कर रहे हैं। तो ये फ्रांस बैठ के सोचता है, क्या जर्मन्स इन पिजन्स को भी फोर्स करेंगे कि नहीं, कूइंग भी जर्मन में करो। सो यहाँ पे एक मतलब एक पॉइंट बोला है राइटर ने, वो ये बोल रहे हैं कि जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो नेचुरली आती है। आप किसी से फ़ोर्स करके लैंग्वेज नहीं बुलवा सकते। देखो तुम कितना भी सोफिस्टिकेटेड बन जाओ, अगेन आई विल गिव द सेम एग्जांपल जो मैं अपनी क्लास में देती हूँ, तुम कितना भी सोफिस्टिकेटेड बन जाओ, वो बन जाओ, लेकिन जब ठेठ गाली बकते हो या फ्रेंड्स से लड़ते हो तो हिंदी में ही अच्छी लगती है ना गाली बकना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आप कितना भी दूसरी लैंग्वेज इम्पोज़ कर दो, अपनी लैंग्वेज से आप कनेक्शन नहीं तोड़ सकते हो। वो आप किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते हो, चाहे वो पिजन्स हो और चाहे वो फ्रेंचमैन हो। यू कैन नॉट फ़ोर्स अ लैंग्वेज अपॉन समवन, बिकॉज़ वो लैंग्वेज नेचुरली आती है। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. So, क्या हो रहा है? अब जब वो काम करके बार बार मुंह ऊपर कर रहा है, टीचर को देख रहा है, तो टीचर हर चीज़ को ऐसे 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 देख रहे हैं, एज वो अपनी दिमाग में सब भर लेना चाहते हैं कि भगवान किसी तरह मेरे दिमाग में सारा मेमोरी यहाँ का आ जाए। भाई जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ पे बिता दी है, सडन न्यूज़ आती है अब कल से नहीं आना है। सो दिस वॉज वेरी पेनफुल फॉर हिम। नाउ ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू imbibe everything into his eyes। वो सब कुछ अपनी आँखों में फिक्स करना चाहते हैं। व्हेन
ही इज़ जस्ट लुकिंग अराउंड हिज स्कूल रूम, अपने रूम में देख रहे हैं, स्कूल के क्लासरूम में देख रहे हैं. Fancy. For 40 years, he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. Imagine, पिछले 40 साल से मिस्टर हैमुअल इसी तरह से पढ़ा रहे थे. गार्डन बाहर है और वहाँ पे क्लास है सामने, हमेशा यही रहा है. दी ओनली डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ. सिर्फ डेस्क और बेंचेस जो हैं उसमें पॉलिशिंग एंड ऑल होती रहती है टाइम टू टाइम, वरना कोई चेंजेस नहीं है. The walnut trees in the garden were taller, and the hop vines that had been planted himself twined about the windows to the roof. ये सिर्फ चेंजेस आए थे क्या? वॉलनट ट्रीज थोड़े बड़े हो चुके हैं. हॉप वाइन का पेड़ जो उन्होंने खुद प्लांट किया था, आज वो विंडो के ऊपर जा चुके हैं, अबाउट द विंडो टू द रूफ. वो विंडो से हट के ऊपर रूफ की तरफ जा रहे हैं. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. हे भगवान, इतनी टाइम उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे दे दी और सडनली उनको सब कुछ छोड़ के जाना है. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks. Oh God, it must have been so painful. ऊपर जहाँ पे नीचे क्लास है, ऊपर वो रहते हैं. जो ऊपर इनकी जो सिस्टर हैं वो अपने बक्से खोल रही हैं, बंद कर रही हैं, सब पैक कर रही हैं. और दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे सो दैट चोरी चोरी ना पढ़ाएं या इस तरह से कुछ ना करें. तो उन लोग को ऑर्डर्स थे टीचर्स को कि इमीडिएटली आप उस कंट्री को छोड़ के चले जाएंगे. But he had the courage to hear every lesson to the very last. And after the writing, we had a lesson in history. लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन थे. हर देखो बहुत पेनफुल है, रोना आ रहा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. हर लेसन को वो लास्ट तक सुनते हैं. एंड आफ्टर द राइटिंग उन्होंने हिस्ट्री का लेसन लिया. एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बा बेबी बोज, दैट इज ABCD एंड ऑल. Down there at the back of the room, old Hosser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. जो छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं तो वो प्राइमर बुक ओपन करता है और उनके साथ स्पेल कर रहे हैं. अगेन दे वर नॉट वेरी एजुकेटेड. स्पेल कर रहे हैं बोथ हैंड्स. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. और आपको समझ में आ रहा था वो भी रो रहा था, उसको भी गिल्ट हो रहा था कि हाय मुझसे ये क्या हो गया, हे भगवान मुझे और आना चाहिए था, मुझे भी पढ़ना चाहिए था, क्यों ऐसा हो रहा है. His voice trembled with emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. So उसकी वॉइस जो है वो ट्रेम्बल कर रही थी इमोशंस से. अब हो क्या रहा था, हम लोग को हंसना भी आ रहा था हौसर की आवाज़ सुन के और रोना भी आ रहा था क्योंकि वहाँ का सिचुएशन इतना पैट्रियोटिज्म, इतना फीलिंग्स, लास्ट लेसन, इसका प्रेशर था तो रोना भी आ रहा था. तो दैट वाज समथिंग वेरी वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन फॉर अस. हाउ वेल आई रिमेंबर्ड दैट लास्ट लेसन. हाय आज भी मुझे कितने अच्छे से याद है वो लास्ट लेसन. All at once, the church clock struck 12. Suddenly, church की clock 12 strike करती है. Then the Angelus. And at the same time, the trumpet of the Persians returning from the drill sounded under our windows. So, Angelus is a prayer song which is sung in the church. ये start होती है by the ringing of the bell. जब bell ring होती है तो ये सुनाई जाती है. So, उसी समय clock जो होती है वो church की वो strike करती है 12 पे और prayer song होती है. और नीचे इनको क्या सुनाई देता है, सेम मोमेंट पे साउंड ऑफ द ट्रम्पेट्स प्ले किए जाते हैं बाय द पर्शियन सोल्जर्स, जर्मन सोल्जर्स हु आर रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल. वो ड्रिल से वापस आ रहे हैं. मिस्टर हैमिल जो हैं वो ये सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं. मिस्टर हैमिल स्टूड अप. वो खड़े होते हैं. वेरी पेल इन हिज चेयर. आई नेवर सॉ हिम सो टॉल. सो मिस्टर हैमिल जो हैं वो इतने स्ट्रेट हैं, वो मोशनलेस हैं कि फ्रांस कहता है कि मैंने इनको कभी भी इतना टॉल देखा ही नहीं है. वो इतना डल थे, इतना कार्डलेस थे एट दिस मोमेंट. जब क्लास ओवर करने के समय आती है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहे थे. My friends, he said, I, but something choked him. He could not go on. So वो क्लास को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो बिगिन करते हैं बोलने के लिए, बट ही कुड नॉट कंटिन्यू. वो बोल नहीं पाते हैं. वाई? बिकॉज ही वॉज ओवर पावर्ड बाई इमोशंस. वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं, बोल नहीं पाते. चोक का मतलब होता है जब हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, अंदर से गुस्सा हो रहा है, मम्मी से बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे हैं, तो वो आवाज़ हमारी बंद कर देता है, चोक कर देता है. तो ही वॉज सो ओवरवेल्म्ड. वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि वो बोल नहीं पाते हैं, वो कुछ नहीं बोल पाते हैं. वॉट डिड ही डू? He said, my friends, I, but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could.
Vive la France. So what he does, he takes a piece of chalk, उस पे बड़ा बड़ा लॉन्ग लिव फ्रांस, जितना बड़ा वो लिख सकते हैं उतना बड़ा वो लिखते हैं. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वो सर ऐसे करके उधर मुँह कर लेते हैं. विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. फिर वो रुकना लिखना बंद करते हैं, घूमते हैं, बिना स्पीक करे वो ऐसे ऐसे इशारे से बोलते हैं कि जाओ जाओ, स्कूल डिसमिस हो गया है एंड यू मे गो. सो बेसिकली हियर वील सी दैट मिस्टर हैम्यूल बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्ड मैन थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अगेन क्योंकि वो अपनी ही लैंग्वेज से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको हटा दिया था, उनको जुदा कर दिया गया था, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच हो जाते हैं, बहुत इमोशनली शैटर्ड हो जाते हैं. सो हम कह सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम द पीपल ऑफ द विलेज रियलाइज दैट नॉट लर्निंग देयर लैंग्वेज वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक. उनको अपनी लैंग्वेज आनी ही चाहिए, ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी. So, in the end, I can simply say that lessons of life should be learnt well in time, or else life should take away the opportunity. So, with this, I'll end the chapter. I hope this chapter is clear to you. If you have any doubts, do ask me in the comment section. I'll try to definitely answer that. And again, I would like to remind you about a book on transformation. This book will be really, really helpful for you people because it has more than 500 solved examples along with so many rules of transformation which you do not find anywhere in a compiled form. एक जगह सारे रूल्स अलॉन्ग विद देयर एग्जाम्पल्स कहीं आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे. ये कई बुक्स का कॉम्बिनेशन करके सारे रूल्स लास्ट 10 years के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं अलॉन्ग विद द आंसर्स फॉर योर प्रैक्टिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन दिस बुक. The cost of the book is 99 rupees and you will be given a PDF once you click on the link given below. ये जो link है ये मेरे WhatsApp का है. You will be directly connected to me on my WhatsApp, and on that WhatsApp I'll give you all the details, how to make the payments and all, and after that you can receive the PDF of the book. Till then, do not forget to like, share or subscribe to your own channel Learn English with Priyanka ma'am. Bye bye.